Good evening to all. How are you? Myself Avik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. And in this video, just we are going to discuss the domain and range of a particular function of class 11 actually. Okay, so this video is for class 11. Just remember this thing. Just 11th candidate, that means 11th standard students should follow these lectures actually, and the 12th classes students, those who have the doubt regarding this domain and range, and as so far I know, the 80 to 90% students of class 12, they don't know how to find the domain and range of a particular function. Okay, so just the class 12 candidates, you should see the lectures properly, and 11, it is in your syllabus, so you should see this lecture obviously, no other option is there. So in this lecture, just we are going to discuss very important and very actually very dangerous thing of the function chapter, actually finding the domain and range of a particular function. Different types of functions will be given to you. Just you have to find the domain and the range of that particular function. Okay, so as I told you, domain of a function काम, domain मैंने क्या बोला था, input values. ओके, इनपुट डालोगे काम में, आउटपुट मिलेगा. डोमेन, इनपुट मतलब एक्स का वैल्यू डालोगे, वैल्यू किसका मिलेगा, एफ एक्स का मिलेगा. दैट मींस एक्स का वैल्यू जो है वो डोमेन होता है, एफ एक्स का वैल्यू जो होता है वो रेंज होता है. दैट मींस एक काम आपको दिया जाएगा, वहां पर आप इनपुट चूज करेंगे. दैट मीन चूज नहीं, आपको इनपुट निकाल के दिखाना है कि क्या क्या इनपुट आप यहां पर निकाल सकते हैं. इस काम के लिए क्या क्या इनपुट चाहिए वो आपको निकाल के दिखाना है. उन लोगों को आपको बोला जाएगा जस्ट फाइंड द डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन. दैट मीन्स फाइंड द इनपुट वैल्यूज फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन. दैट मीन्स वी डोंट नो व्हाट आर द इनपुट वैल्यूज हियर. वी हैव टू चेक, वी हैव टू एक्चुअली फाइंड द इनपुट वैल्यूज फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन. Okay, so after using this input value, some output values will be there, and this output values also should be found. Okay, so input values, that means domain, output values, that means range, and middle में कौन रहेगा, एक फंक्शन रहेगा, एक काम रहेगा, वर्क रहेगा. उसमें कुछ इनपुट डालोगे, आउटपुट मिलेगा. इनपुट का वैल्यूज निकालना है, आउटपुट का वैल्यूज भी निकाल के दिखाना है आप लोगों को. यही होता है बेसिक कॉन्सेप्ट. ओके, सो जस्ट गिव द हेडिंग, पेन और पेपर लो, उसके बाद जो है स्टार्ट करो. वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑल्सो. ओके, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, डोंट स्किप द लेक्चर्स फॉर ए मिनट ऑल्सो. एक्चुअली नॉट इवन ए मिनट, नॉट इवन ए माइक्रो सेकेंड, नॉट मिनट. ओके, सो आप लोगों को अगर मेरा लेक्चर्स, मेरा वीडियोस, मेरा टीचिंग टेक्निक सब कुछ पसंद आ रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, शेयर करिए. आप लोग को अगर पसंद आ रहा है लेक्चर्स, आप लोग लाइक भी दीजिए, जिससे मुझे थोड़ा बहुत एनकरेजमेंट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है फॉर प्रिपेयरिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोस. ओके, सो जस्ट ऑल माय सब्सक्राइबर्स एंड ऑल माय चैनल व्यूअर्स, यू आर एक्चुअली दिस, आई थिंक you are observing that every day 2-3 videos are being uploaded, okay, in my channel. So for preparing a video, actually we have to spend too much time with this preparing videos. Okay, so just I am giving the lectures and then it is being uploaded, not like that. Okay, for preparing the video, preparation is there, and then after that, after making the video, editing is there. Okay, so almost 2 hours, okay, is being used for making a video, one particular video. So every day minimum 2 videos are being uploaded, and someday 2-3 more than 2 videos are also being uploaded. So just you can see every day just I am spending 6 to 7 hours for making these videos for whom, actually for you only. The students are getting actually this so that my student will get too much conveniences from my side, and actually this in this mathematics subject maximum number of students are facing a lot of problems, and that's why I am trying my best to provide you the too much conveniences, too much, actually I'm just trying to build
the interest inside of you, okay, regarding my subject as well, regarding this mathematics subject as well, okay. Just I am trying, okay. So if you like my videos, if you like my lectures, please subscribe my channel as well, okay. So just write the first question, not first question actually, first concept, domain and range of a particular function, okay. Just give the heading, domain and range of a function, just give the heading, okay. If fx be any real valued function, ठीक है, रियल वैल्यू ही मिलना पड़ेगा यहाँ पर, इमेजिनरी वैल्यू तो निकलने से नहीं होगा, है, कल्पना करके तो नहीं होगा ना कुछ भी काम क्या कुछ कल्पना होता है क्या। अब मन ही मन आप लोग सोच रहे हैं कि सपना देखते हैं ना, मैं तो उधर जा रहा हूँ एस्ट्रोनॉट, मैं तो स्पेस में जा रहा हूँ, स्पेस में मैं फ्लोट कर रहा हूँ, तो सपने में, तो सपने में देखोगे कि डायरेक्टली तुम चले गए आसमान में, नो इनपुट नो आउटपुट इज देयर, ओके। सो सपना ही होता है, रियल में तो ये इसको पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, एस्ट्रोनॉट बनना पड़ता है, फिजिक्स मैथ्स में ग्रीप होना पड़ता है खतरनाक, तब आप जाके एस्ट्रोनॉट बनेंगे, है कि नहीं। तो इफ fx be any real valued function and f such that a to b, a होता है क्या सेट, इनपुट सेट, इनपुट, और b क्या होता है, आउटपुट सेट, then for all values of x belongs to a, x मतलब क्या है, इनपुट वैल्यूज, कहां से चूज करना है, फर्स्ट सेट से चूज करना है, we will get fx, कहां से, b, fx को क्या, आउटपुट बोला जाता है, ओके, then value of fx we will get fx. So values of x are called domain, okay, and values of fx are called range, ओके, ठीक है। वैल्यूज ऑफ fx को y भी लिख सकते हैं हम लोग, y इक्वल्स टू fx, y जो बात है fx भी सेम चीज ही है, fx को आप लोग y से भी डिनोट कर सकते हैं। जब रिलेशन फंक्शन चैप्टर करेंगे या फिर कैलकुलस पूरा मैथमेटिकली, आप y और fx जो है एक ही चीज ले सकते हैं, दोनों एक ही बात है कि नहीं। तो y इक्वल्स टू fx आर कॉल्ड द रेंज। दैट मीन्स इफ आई टेक एन एग्जाम्पल, if fx equals to suppose x square, this is the work, so some input values x equals to 1, then output will be 1 square equals to 1. It is your output, it is your input, that means it is your domain, it is your range. X equals to 2, fx equals to 2 square, that means 4, so that means input is 2, output is 4, that means domain is 2, range is 4, just like that. Just you can choose the different values of x and that will be the domain values, and the output values will come after using this input, and the output values can be claimed as the range values. Remember this thing, मतलब domain होता है x का values और range होता है fx का values. domain होता है input और range होता है output. Just remember this thing, ठीक है। एक मुक्का मारूंगा, 2 दांत तोड़ डालूंगा, इसका मतलब क्या है, इनपुट डोमेन, आउटपुट क्या मिला, 2 दांत गिर गया, 2 दांत टूट गया, दैट मीन्स आउटपुट क्या है, 2 दांत टूट गया। तो यहां पर डोमेन क्या होता है, मेरा पंच, ओके। आपका 2 दांत गिर गया, दैट मीन्स वो आउटपुट होता है, और वो होता है क्या, रेंज, ठीक है। डोमेन एंड रेंज, ओके। कितना सुंदर है, बेसिक कॉन्सेप्ट है,
तो ऐसे ही हम लोग को इनपुट निकाल के दिखाना है और आउटपुट निकाल के दिखाना है। एक एग्जांपल करते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट राइट फाइंड द डोमेन एंड रेंज, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ fx इक्वल्स टू, फाइंड, ऐसे लिखा रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, डोमेन एंड रेंज ऑफ fx इक्वल्स टू 1/x प्लस 2, 1/x प्लस 2। इस फंक्शन का आपको डोमेन दैट मीन्स इनपुट वैल्यूज और आउटपुट वैल्यूज निकालना है। इनपुट वैल्यूज मतलब क्या है, x का वैल्यूज, आउटपुट वैल्यूज मतलब क्या है, fx का वैल्यूज। तो यहां पर लिखो गिवन fx इक्वल्स टू 1/x प्लस 2, है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, यहां पर इनपुट वैल्यूज, इनपुट मतलब किसका वैल्यू है, x का वैल्यू, है कि नहीं। x आपको कहां पर दिखाई दे रहा है, ये देखो x, यहां पर ये x है। तो पहले देखो यहां पर जो काम दिया गया है fx इक्वल्स टू कुछ दिया गया है, तो fx इक्वल्स टू जो चीज आपको दिया गया है वो देखो एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है ना, 1/x प्लस 2 फ्रैक्शन है। अब हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन में कभी भी डिनोमिनेटर जो है जीरो नहीं हो सकता है। दैट मीन्स ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, देखो तो हियर x प्लस 2 डिनोमिनेटर है ना, ये कभी जीरो नहीं हो सकता है, x प्लस 2 नॉट इक्वल्स टू जीरो। सो x 2 को चेंज करके उधर लेके जाएंगे, नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, -2। दैट मीन्स यहां पर x का वैल्यू -2 नहीं हो सकता है। अब -2 के अलावा x का वैल्यू तुम कुछ भी चूज करो, ये जो fx इक्वल्स टू ये जो चीज दिया गया है इसका वैल्यू कभी भी अनडिफाइंड आएगा, इंफिनिटी आएगा। x का वैल्यू -2 एक्सेप्ट -2 वट एवर द वैल्यू इट इज, जस्ट यू कैन चूज द वैल्यूज ऑफ x, ओके। x का वैल्यू -2 के अलावा कुछ भी यहां पर पुट करो, दिखाई दे रहा है ना डिनोमिनेटर, उसमें देखो तो ये fx का जो वैल्यू निकलेगा वो कभी भी इंफिनिटी दैट मीन्स अनडिफाइंड निकलेगा नहीं। यहां पर x का वैल्यू सिर्फ -2 जब पुट करेंगे तभी यहां पर fx का वैल्यू जो है देखो -2 प्लस 2 क्या है कि नहीं। सो तो यहां पर डोमेन क्या होगा, डोमेन, डोमेन है कि x का वैल्यू मैं कुछ भी चूज कर सकता हूं, कुछ भी चूज कर सकता हूं, रियल नंबर, क्या छोड़ के, एक्सेप्ट कौन सा, -2 छोड़ के, -2 छोड़ के कुछ भी चूज कर सकता हूं। तो कुछ भी मतलब ऑब्वियसली रियल नंबर से तो चूज करना है ना, जो मैं देख सकता हूं, फील कर सकता हूं, वहां से तो मैं चूज करूंगा, मैं स्पेस से तो लेके नहीं आऊंगा वैल्यूज, है कि नहीं। तो यहां पर रियल नंबर कुछ भी, इससे कौन सा माइनस करेंगे, -2 को माइनस कर देंगे, बस हो गया डोमेन, निकल गया डोमेन, ओके। अच्छा, फिर आओ रेंज में। अच्छा, मैंने बोला था लेट fx मतलब क्या है, y लिख सकते हैं, तो y इक्वल्स टू 1/x प्लस 2। अब रेंज मतलब क्या है, तो y का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है ना, है। मैंने बोला था ना कि ये होता है रेंज और ये होता है डोमेन। तो यहां पर तो देखो डोमेन x का वैल्यू निकला है डोमेन, अब रेंज निकालना है, रेंज मतलब किसका वैल्यू निकालना है, fx का वैल्यू निकालना है, दैट मीन्स y का वैल्यू निकालना है। तो एक काम करते हैं, देखो बोथ साइड अगर मैं फ्रैक्शन उल्टा कर दूं ऐसे लिख सकते हैं, फिर x प्लस 2 इक्वल्स टू 1/y, सो दैट मीन्स x इक्वल्स टू 1/y माइनस 2, सो x इक्वल्स टू 1 माइनस ट्वाइस y बाई y। देखो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन यहां पर आ गया है, ठीक है। अच्छा, x इक्वल्स टू 1 माइनस ट्वाइस y बाई y। अब आपको किस चीज का वैल्यू चूज करना है, y का, x का तो आपने निकाल ही लिया, x के तरफ देखना भी नहीं है अभी, है कि नहीं। अच्छा, यहां पर देखो, यहां पर भी देखो x इक्वल्स टू कुछ लिखा हुआ है, जो राइट साइड में है, राइट साइड में सब देखो पूरा y का एक्सप्रेशन है। जब आप रेंज में चेंज दैट मीन्स रेंज निकालने के लिए जा रहे हैं, याद रखना जो गिवन एक्सप्रेशन होगा, यहां पर गिवन एक्सप्रेशन में देखो इस साइड में y है और इस साइड में x का एक्सप्रेशन है कि नहीं। अब जब रेंज निकालने के लिए जाओगे तब याद रखना लेफ्ट साइड में सिर्फ x रहेगा, राइट साइड में
पूरा y का एक्सप्रेशन रहेगा। इसलिए देखो हम लोग यहाँ पर ये थोड़ा काम किया है। अब देखो लेफ्ट साइड में सिर्फ x है, राइट साइड में y का एक्सप्रेशन आ गया है। ये प्रोसेस है, ठीक है। आपको ऐसे ही करना पड़ेगा जब रेंज निकाल रहे हैं आप, है कि नहीं। अच्छा, अब जो है यहां पर 1 माइनस ट्वाइस वाई बाई वाई, डिनोमिनेटर क्या दिखाई दे रहा है? फ्रैक्शन ही है, फ्रैक्शन है ना, है? तो नीचे y है। अच्छा, यहां पर y का वैल्यू क्या चूज करने से ये फ्रैक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, y का वैल्यू 0। यहां पर y की जगह 0 हम लोग पुट नहीं कर सकते। न्यूमरेटर को छोड़ो, न्यूमरेटर तो प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। जब फ्रैक्शन आ जाए तब आपको डिनोमिनेटर ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर की तरफ देखना है कि नहीं। तो डिनोमिनेटर y है, तो दैट मींस y, यहाँ पर y की जगह अगर मैं 0 पुट कर दूं तो पूरा एक्सप्रेशन एनीथिंग बाय 0, दैट मींस व्हाट? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो नहीं निकल सकता है। दैट मींस यहाँ पर y का वैल्यू हम लोग 0 चूज नहीं कर सकते हैं। हियर y नॉट इक्वल्स टू 0। सो 0 चूज नहीं कर सकते तो चूज क्या करें? एनी नंबर यू कैन चूज, एनीथिंग यू कैन चूज, बट 0 चूज नहीं कर सकते। दैट मींस इसको कैसे लिखेंगे? कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं, कोई भी, दैट मींस रियल नंबर चूज कर सकते हैं। ये बिलोंग्स टू मतलब क्या है यहाँ पर? अच्छा ठीक है, यहाँ पर काम करते हैं। सो रेंज इक्वल्स टू, अच्छा रेंज मतलब y का वैल्यू, तो क्या एनीथिंग वी कैन चूज, एनीथिंग r, बट एक्सेप्ट व्हाट? 0। एक्सेप्ट व्हाट? 0 है कि नहीं, क्योंकि y का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 0 चूज नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पर y का वैल्यू 0 हम लोगों ने यहाँ पर चूज कर दिया है तो x का जो वैल्यूज है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। और x का वैल्यू तो ये डोमेन है। x मतलब क्या है? x का वैल्यू तो कभी अनडिफाइंड तो नहीं हो सकता है कि नहीं। x मतलब क्या है? इनपुट वैल्यूज। अगर इनपुट वैल्यूज अनडिफाइंड हो गया तो आउटपुट कहां से मिलेगा? आउटपुट भी तो अनडिफाइंड ही होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर इनपुट हो या आउटपुट हो, कभी भी यहाँ पर अनडिफाइंड इन्फिनिटी नहीं हो सकता है। रिमेंबर दिस थिंग। तो आप लोगों को जब पहले आपको डोमेन निकालना है तब आपको ऐसे ही निकालना है, और जब रेंज निकालना है तब आपको ये थोड़ा एल्गोरिथम थोड़ा देखना है? यहाँ पर डिफरेंट फंक्शंस दिया जाएगा, बट स्ट्रक्चर जो है वो आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में सिर्फ x का एक्सप्रेशन रहेगा, राइट साइड में सिर्फ y का एक्सप्रेशन ही रहना चाहिए, ओके। फिर उसके बाद y का वैल्यू चूज करना है, ठीक है। और एक करते हैं, क्लियर हो जाएगा। फिर लिखो fx इक्वल, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ fx इक्वल्स टू, फाइंड द डोमेन एंड रेंज fx इक्वल्स टू x minus 1 by x minus 3। अब ये है फंक्शन, तो आपको लिखना है गिवन fx इक्वल्स टू क्या है? x minus 1 by x minus 3। अब तो डोमेन निकालना है कि नहीं। अच्छा, ये भी देखो एक फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है। राइट साइड लोग को लेके ही आपको डील करना है, लेफ्ट साइड में देखना भी नहीं है। राइट साइड में देखो फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है? फ्रैक्शन जब होता है तब डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं हो सकता है। तो डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? x माइनस 3। दैट मींस x माइनस 3 कभी 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल्स टू 0। -3 को साइड चेंज करके उधर के लेके जाओ तो साइन चेंज होकर +3 हो जाएगा, और बीच में क्या? नॉट इक्वल्स टू। दैट मींस x का वैल्यू +3 कभी नहीं हो सकता है। अब +3 के अलावा एनी वैल्यूज कैन बी चूजन। x का वैल्यू कोई भी तुम चूज कर सकते हो। तो सो डोमेन इक्वल्स टू कोई भी r माइनस, कौन सा माइनस करना है? कौन सा नहीं हो सकता है? 3 नहीं हो सकता है। दैट मींस नॉट इक्वल्स टू 3 है ना, तो आपको कोई भी यहां से 3 को माइनस कर देना है। 3 के अलावा एनी वैल्यूज कैन बी चूज। हो गया। जब रेंज निकाल रहे हो, लेट fx की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? y इक्वल्स टू x माइनस 1 बाई x माइनस 3। अब थोड़ा एल्गोरिथम थोड़ा सोचो, मैंने क्या बोला था। अब जब रेंज निकालने के लिए जा रहे हो तब आपको ये सोचना है कि लेफ्ट साइड में इक्वल्स टू साइन है बीच में, लेफ्ट साइड में सिर्फ x का एक्सप्रेशन रहना चाहिए, राइट साइड में सिर्फ y का एक्सप्रेशन रहना चाहिए। कैसे कर रहे? ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं। अब बोलोगे सर यहाँ पर तो ऊपर नीचे दोनों तरफ ही, ऊपर नीचे दोनों में ही x है,
तो हम लोग ये दो एक्स लेके कैसे डील करें, है कि नहीं। हम लोग को 2x लेके डील नहीं करना है, कोई भी एक 1x को आपको कैंसिल करना है। कैसे कैंसिल करिए, देखो ये एल्गोरिथम थोड़ा देखो, बोथ साइड हम लोग -1 कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं देखो, अभी इस लाइन में पता चलेगा। y -1 और उधर जो है x -3 तो एलसीएम होगा, x -1 फिर -x + 3 -x + x कैंसिल, y -1 इक्वल्स टू इधर होगा 2/x - 3, 2x है गया, अभी एक x कैंसिल हो गया। अब क्वेश्चन है कि सर आपको कैसे समझ में आया, यहाँ पर बोथ साइड -1 करना है, बोथ साइड -1 करना है, ये कैसे आपको पता चला, है कि नहीं। अच्छा, यहां पर याद रखना, जब रेंज तुम निकाल रहे हो और राइट साइड में फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है, तो आप लोग को देखना है कि न्यूमरेटर पार्ट में जो x का एक्सप्रेशन रहेगा उसको ही कैंसिल करना है। न्यूमरेटर में x का एक्सप्रेशन क्या है, x 1x प्लस 1x x है ना, +1 है कि नहीं, इसलिए हम लोगों ने बोथ साइड -1 किया है, क्योंकि +1x -1x कैंसिल हो जाता है, इसलिए बोथ साइड हम लोगों ने -1 किया है। तो ये जो स्टेप है ये आप लोगों को सोचना है। यहां पर ये न्यूमरेटर वाला जो x है उसको कैंसिल करना है, फिर देखना है क्या चाहिए। न्यूमरेटर x को कैंसिल करना है तो हम लोग देखेंगे न्यूमरेटर में जो x है उसके साथ कोफिशिएंट जो है वो क्या है, यहां पर दिखाई दे रहा है। देखो न्यूमरेटर में जो x है इसका जो कोफिशिएंट है वो +1 है। अच्छा, +1 है, दैट मीन्स +1x। तो +1x को कैंसिल हम लोग कैसे करेंगे, -1 अगर बोथ साइड में ऐड करूं तो एलसीएम करेंगे, नीचे भी तो x है ना, x के साथ ये -1 मल्टीप्लाई होगा तो -x आ जाएगा, तो +x -x कैंसिल नहीं होगा क्या, है कि नहीं। ऐसे आपको एल्गोरिथम जो है सोचना है। तो ये सब एल्गोरिथम दिमाग में आने के लिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है, हम लोग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर अब देखो, तो बोथ साइड अगर फ्रैक्शन उल्टा कर दूं, ये x -3/2 हो जाएगा और इधर 1/y -1, तो x -3 2 को डायगोनली उधर लेके जाओ और इधर x इक्वल्स टू 2/y -1, ये -3 को +3 करके उधर लेके चले जाओ, दैट मीन्स 2 + 3y -3/y -1, है कि नहीं। सो तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू 3y -1/y -1 आ गया ना टारगेट। देखो अब लेफ्ट साइड में देखो सिर्फ x का एक्सप्रेशन है, राइट साइड में सिर्फ y का एक्सप्रेशन आ गया, y रिलेटेड एक फ्रैक्शन आ गया। यही तो टारगेट था हम लोगों का। हर एक रेंज वाला जो पार्ट है उसमें आपको यही एल्गोरिथम, यही स्टेप करना है। अब जो है फ्रैक्शन आ गया, न्यूमरेटर में 3y -1 है, डिनोमिनेटर में y -1 है। अब सिंपल फ्रैक्शन है, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर तो 0 नहीं हो सकता है कि? तो यहां पर डिनोमिनेटर क्या दिखाई दे रहा है आपको, y -1, तो हियर y -1 कभी 0 होगा, y -1 जो है वो कभी 0 होगा, मुझे तो नहीं लगता। अगर y -1 यहाँ पर 0 हो जाए तो समथिंग एनीथिंग न्यूमरेटर में कुछ भी रहे बाई 0, आंसर इज इंफिनिटी। सो y का वैल्यू, y -1 का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता, दैट मीन्स y नॉट इक्वल्स टू -1 को चेंज करके उधर लेके जाओ +1, दैट मीन्स y का वैल्यू कभी भी यहाँ पर +1 नहीं हो सकता है। y का वैल्यू +1 नहीं हो सकता तो भाई क्या होगा, y का वैल्यू +1 नहीं होगा तो दूसरा कुछ वैल्यूज ले लो, मन में जो आए, +1 मत लो, +1 के अलावा जो भी वैल्यूज है वो सब आप चूज कर सकते हैं, सब एनी वैल्यूज, मतलब r, एनी वैल्यूज, मैंने बोल दिया ना, एनी वैल्यूज r। माइनस किसको करना है, माइनस किसको करना है, 1 को करना है। सो रेंज, सो इसे लिख लो, सो रेंज इक्वल्स टू एनी वैल्यूज बट एक्सेप्ट 1, तो ये होता है रेंज, है कि नहीं, ये होता है ना रेंज। ये सब देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, है कि नहीं, ठीक है। फिर देखो सेम, अब फंक्शंस यहां पर डिफरेंट डिफरेंट दिया जाएगा, है कि नहीं, तो आपको एल्गोरिथम जो है ऐसे ही आपको करना है, ठीक है।
तो फाइंड द डोमेन इन रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू, अब दूसरा एफ एक्स दिया जाएगा, क्या है 2x माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये है गिवन एफ एक्स। थोड़ा लेवल मैंने बढ़ा दिया है यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन का ये एफ एक्स दिया गया है कि नहीं, क्या है हम लोग प्रोसीड करेंगे। लिखो गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो गया। तो ये भी तो यहां पर देखो राइट साइड में फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है ना, तो फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है, दैट मींस क्या, डिनोमिनेटर में जो भी एक्सप्रेशन रहेगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। एटलीस्ट ये लिखो पहले हियर, बाकी बात जो है हम लोग बाद में सोचेंगे। नॉट इक्वल्स टू 0 ये तो हो गया। अच्छा, इसका जो है मिडिल टर्म कर सकते हैं क्या, देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 नॉट इक्वल्स टू 0 तो है, तो दैट मीन्स x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, यहां पर x होगा, दैट मीन्स x माइनस 2 एंड x माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू 0 है कि नहीं। दो फैक्टर मिल गए यहां पर, क्या क्या फैक्टर, दैट मीन्स यहां पर एक पिताजी, यहां से दो चाइल्ड्स निकल गया है। अब पिताजी अगर 0 नहीं है तो चाइल्ड कहां से 0 होगा, पिताजी अगर 0 नहीं है, ये देखो नॉट इक्वल्स टू, ये है पिताजी, ये है फादर। अब यहां से जो है ये दो चाइल्ड निकल गया, अब ये लोग भी क्या 0 के साथ इक्वल होगा क्या, पिताजी तो 0 नहीं है कि नहीं, पिताजी जैसे होंगे बच्चा भी ऐसा ही होगा, हेरिडिटी बायोलॉजी में आ गई है कि नहीं। तो दैट मीन्स यहां पर x का वैल्यू जो है क्या क्या है, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 1 ऐसे निकाला जाता है। आप लोगों ने क्लास 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा शायद, ओके, तो द्विघात जो समीकरण होता है उसमें। अच्छा, उसमें नॉट इक्वल्स टू 0 है, मैंने इक्वल साइन क्यों दिया रे बाबा, नॉट, तुम भी नॉट इक्वल्स टू दो, तो प्लीज x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता है, x का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है। पिछले क्वेश्चंस में एक एक वैल्यू मिला था, यहां पर दो है, क्या फर्क पड़ता है। तो यहां पर जो है जो डोमेन वैल्यूज हैं वो डोमेन वैल्यूज एनीथिंग कैन बी चूजन बट एक्सेप्ट 1 2। कैसे लिखते हो उसको, सो डोमेन एनीथिंग चूज करो बट एक्सेप्ट मतलब माइनस, क्या क्या नहीं चूज करना है, 1 एक और दूसरा है, बस ये डोमेन हो गया डोमेन है कि नहीं, ठीक है। हो गया। फिर अब हम लोग जो है ओके, अच्छा यहां पर रेंज देखते हैं, y इक्वल्स टू 2x माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है कि नहीं। अच्छा, यहां पर देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन है डिनोमिनेटर में, क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन आ गया ना, ऊपर तो नॉर्मल लिनियर फॉर्मेशन है, तो मैंने बोला था कि आपको डिनोमिनेटर को ही कंसीडर करना है। अच्छा, यहां पर जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में किया है, अब आप लोगों को क्या करना है, एक्सप्रेशन में जो है सजाना है नहीं। अब बोलोगे सर यहाँ पर एक्सप्रेशन में कैसे सजाएंगे हम लोग, यहाँ पर एक्सप्रेशन में यहाँ पर कैसे सजाएंगे, क्वेश्चन तो ये है। अच्छा, यहाँ पर देखो थोड़ा ट्रिक अप्लाई करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन जब होता है ना फंक्शन, तब आप लोगों को ये ही ट्रिक अप्लाई करना है, ठीक है, थोड़ा याद रखना उसको। और जब स्पेशली क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन जो है वो डिनोमिनेटर पार्ट में रहेगा, तभी आपको ये ट्रिक अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, यहां पर x का वैल्यू जो है 1 और 2 नहीं निकल सकता, x का वैल्यू जो है 1 और 2 नहीं आएगा, सो दैट मीन्स यहां पर जो है x का वैल्यूज 1 और 2 चूज नहीं कर सकते हो।
तो 1 और 2 के अलावा x का वैल्यू कुछ भी यहाँ पर निकल सकता है, कुछ भी तुम चूज कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर x का वैल्यू 1 और 2 के अलावा कुछ भी यहाँ पर पुट करो, कुछ भी यहाँ पर पुट करो, y का वैल्यू जो है वो क्या कभी भी अनडिफाइंड आएगा? यहाँ पर y का जो वैल्यू है वो कभी भी यहाँ पर अनडिफाइंड जो है वो आएगा कि नहीं? कभी आएगा यहाँ पर? सो यहाँ पर ऐसे लिखो, सिंस x बिलोंग्स टू, दैट मीन्स ये डोमेन मतलब इनपुट, कहां से? रियल नंबर से 1 और 2 को छोड़ के आपको x का वैल्यूज निकालना है। Since x belongs to this, then fx belongs to, fx का वैल्यू जो है वो किस में आएगा? यहाँ पर सपोज x का वैल्यूज 1 और 2 तुमने चूज नहीं किया, जो भी x का वैल्यू जो है वो मन में जो आए आप पुट कर सकते हैं यहाँ पर, बट एक्सेप्ट 1 और 2 चूज करके y का वैल्यू कभी भी अनडिफाइंड आएगा यहाँ पर। यहाँ पर तो अगर मैं 1 और 2 चूज करूं तभी जाके y का वैल्यू यहाँ पर अनडिफाइंड आएगा। एक्सेप्ट दैट 1 और 2 अगर चूज ना करूं डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर हर एक x का वैल्यूज के लिए y का वैल्यूज भी तो कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। y का वैल्यूज भी क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। दैट मीन्स क्या होता है? कुछ ना कुछ मतलब क्या होता है? रियल नंबर बोला था ना मैंने, कुछ ना कुछ मिलेगा। दैट मीन्स क्या मिलेगा? y का वैल्यू क्या मिलेगा? रियल नंबर ही मिलेगा, कुछ ना कुछ। पर्टिकुलर वैल्यू हम लोग यहाँ पर नहीं जानते, ये तो आप कब जानेंगे? जब x का पर्टिकुलर वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, y का पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा। उससे पुट करने से पहले, इनपुट वैल्यूज चूज करने से पहले हम लोग ये जानते हैं, अच्छा यहाँ पर इनपुट अगर 1 और 2 चूज ना करे तो y का वैल्यू जो है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, y का वैल्यूज कुछ ना कुछ यहाँ पर मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। दैट मीन्स y का वैल्यू क्या होगा? कहां पर आएगा? रियल नंबर में आएगा, है कि नहीं? देखो, सो दैट मीन्स y बिलोंग्स टू r। तो सो रेंज यहां पर क्या होगा? r, ऑल द रियल नंबर्स है। रेंज सेट जो है वो रियल नंबर्स का ही आएगा, है कि नहीं? ठीक है, कर सकते हैं ना ऐसा? ठीक है, फिर फाइंड द डोमेन, यहां पर आपको सिर्फ डोमेन निकालना है। ठीक है, फाइंड द डोमेन ऑफ fx इक्वल्स टू, फाइंड द डोमेन ऑफ fx इक्वल्स टू रूट 1 बाई रूट x माइनस 1 बाई रूट x माइनस 1। आपको सिर्फ यहाँ पर डोमेन निकालना है, रेंज नहीं निकालना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन ऐसे दिया गया, डोमेन निकालिए। ठीक है, अच्छा अब जो है यहाँ पर गिवन fx इक्वल्स टू 1 बाई रूट x माइनस 1, ये भी फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर तो 0 नहीं हो सकता है, ये तो श्योर है हम लोग, है कि नहीं? तो डिनोमिनेटर कब 0 होगा? x माइनस 1 जब नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। मीन्स x माइनस 1 जब तक 0 ना हो डिनोमिनेटर भी 0 नहीं होगा, है कि नहीं? तो x माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स यहां पर x नॉट इक्वल्स टू 1, ये एक निकला, x नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, x का वैल्यू 1 नहीं हो सकता। अगर मैं x का वैल्यू यहां पर पुट कर दूं 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो पूरा फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर डोमेन वैल्यू जो है, जो इनपुट वैल्यू है, इनपुट हम लोग यहाँ पर 1 चूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये तो गया पहला केस। सेकंड केस में रूट है कि नहीं? जो पिछला जो क्वेश्चन है वहां पर देखो किसी भी जगह रूट नहीं था, इसमें रूट दिया गया है। जब रूट इंट्रोड्यूस किया जाता है, हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर कभी भी
इस टाइप का नंबर नहीं आता है रियल नंबर में। रूट माइनस 2, रूट माइनस 3, रूट माइनस 4, ऐसा कभी भी रूट के अंदर निगेटिव वैल्यूज नहीं आएगा रियल नंबर पर। कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है, तो ये सब नंबर्स लेके हम लोग डील करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। बट कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब इमेजिनरी, इमेजिन करना है। तो दीज आर ऑल इमेजिनरी नंबर्स, नॉट द रियल नंबर्स। इमेजिनरी, कल्पना के राष्ट्र में आपको डील करना है, आपको फ्लोट करना है। तो रियल वर्ल्ड में, रियल फील्ड में ये सब नंबर्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो दैट मीन्स रूट के अंदर कभी भी निगेटिव नंबर नहीं आ सकता है। सो दैट मीन्स रूट के अंदर सब नंबर्स क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर आएगा। पॉजिटिव नंबर आएगा मतलब क्या? ग्रेटर देन 0। सो दैट मीन्स दूसरा केस यहां से निकलता है, x माइनस 1 का वैल्यू ऑल टाइम ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो दैट मीन्स x, उसको साइड चेंज करके उधर लेके जाए 1, दैट मीन्स x का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा, 1 से छोटा नहीं होगा। 1 भी नहीं हो सकता है, याद रखना, 1 भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर 1 से ग्रेटर चूज करना पड़ेगा आपको। दैट मीन्स 1.5, 1. जस्ट लाइक दैट, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पर डोमेन क्या निकलेगा? देखो, x का वैल्यू 1 से ग्रेटर चूज करना है, 1 से ग्रेटर। दैट मीन्स 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर मतलब कहां पर जाके खत्म होगा? 1 से ग्रेटर 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3, 3.1, 3.2, 3.5, 100.1, 100.2, 100.2, 100.3, 100.5, 100.6 चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। ये 1 से ग्रेटर बोला है, लास्ट बाउंड्री तो नहीं है। तो लास्ट बाउंड्री कहां तक जाएगा? इंफिनिटी। दैट मीन्स कैसे लिखना है आपको? 1 से लेके, दैट मीन्स डोमेन जो है वो x का वैल्यू जो है ये 1 से शुरू होगा, खत्म कहां पर होगा? इंफिनिटी में खत्म होगा। तो दैट मीन्स उसको ठीक तरह से कैसे लिखते हैं? दिस इंप्लाइज x का वैल्यूज, दैट मीन्स इनपुट वैल्यूज कहां से चूज करना है? बिलोंग्स टू साइन देना है 1 से ग्रेटर। दैट मीन्स 1 भी चूज नहीं कर पाएंगे, 1, इंफिनिटी। और ऑल टाइम याद रखना, इंफिनिटी के साइड में ओपन इंटरवल दिया जाता है। ओपन, इसको बोला जाता है ओपन इंटरवल। 1 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। देखो, तो दैट मीन्स 1 के साइड में भी ओपन इंटरवल दिया जाता है। अब बोलोगे सर ये ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल है क्या? देखो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज तुम्हें बोला गया कि x का वैल्यू 1, 2, 3, 4, ठीक है। अच्छा, उसको अगर मैं शॉर्टकट तरीके से लिखूं, देखो तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना? 1 से लेके 4 तक इसको, ये जो है ये क्या है? लेस इक्वल्स टू, दैट मीन्स x का वैल्यू 1 या फिर 1 से ग्रेटर, 4 या फिर 4 से छोटा। दैट मीन्स लेस इक्वल्स टू साइन जब दिया जाता है तब क्लोज इंटरवल यूज किया जाता है। कैसे लिखते हैं उसको? ये वैल्यूज किसका है? x का है। तो दैट मीन्स x, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और थोड़ा एडवांस तरीके से, मॉडर्न तरीके से आप कैसे लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,4, ऐसे लिख सकते हैं, क्लोज, ठीक है। दैट मीन्स x का वैल्यू 1 से लेके 4 तक, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, ठीक है नहीं? और एक एग्जांपल लेते हैं, ये साइड में लिख लो। सपोज 1, 2, 3, 4, x का वैल्यू जो है 1, 2, 3, 4 है। तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना? देखो तो ये इक्वल साइन ना देके ये, दैट मीन्स x का वैल्यू जो है 0 और 5 के बीच लाई कर रहा है। x का वैल्यू 0 और 5 के बीच जो है लाई कर रहा है, बट x का वैल्यू 0 नहीं होगा, x का वैल्यू 5 भी नहीं होगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4 बीच में जो वैल्यूज है वो सब x का वैल्यूज है। तो दैट मीन्स 0 भी नहीं होगा, इसलिए इक्वल साइन नहीं दिया गया है। यहाँ पर 5 भी नहीं होगा, इसलिए भी इक्वल साइन नहीं दिया गया है। दैट मीन्स 0 और 5 के बीच लाई करता है। तो जब ऐसे लिखा जाता है ना, जब ये इक्वल साइन नहीं दिया जाता, तब
ओपन इंटरवल यूज किया जाता है। दैट मीन्स ये ओपन 0,5। ओपन इंटरवल मतलब ये होता है कि x का वैल्यू 0 नहीं होगा, x का वैल्यू 5 नहीं होगा, बट बीच में जो है वो सब x का वैल्यूज होगा, है कि नहीं। तो यहां पर भी देखो देखो इक्वल साइन तो नहीं है कि नहीं। तो बस यहां पर क्या होगा, 1 के साइड में भी ओपन, इंफिनिटी साइड में तो ओपन ही है ऑब्वियसली। इंफिनिटी तक हम लोग इंफिनिटी का वैल्यू क्या है वो तो हम लोग नहीं जानते ना यहाँ पर, है कि नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट देखो, फाइंड द डोमेन ऑफ fx इक्वल्स टू, find the domain of fx equals to, find the domain of fx equals to, find the domain of fx equals to, find the domain, find the domain of fx equals to root 4 minus x square। यहां पर भी रूट का केस आ गया, so that means fx equals to रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। बट यहां पर प्लस पॉइंट ये है, ये फ्रैक्शन नहीं है, तो फ्रैक्शन नहीं है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर का केस भी यहां पर अराइज नहीं होगा, है कि नहीं। तो डिनोमिनेटर का केस अराइज अगर ना हो तो जीरो भी तो आ सकता है, सिर्फ डिनोमिनेटर होने से ही तो प्रॉब्लम है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं आ सकता है। बट अगर डिनोमिनेटर नहीं है, कोई भी टर्म न्यूमरेटर में है, तो उसका वैल्यू तो जीरो आ सकता है, जीरो बाय एनीथिंग, आंसर तो जीरो होता है, जीरो इज रियल नंबर, इंफिनिटी तो नहीं आ रहा है ना। तो यहां पर देखो डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर जीरो है, यहां पर ये कंसीडर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू रूट है, रूट तो है, निगेटिव तो नहीं आ सकता है, दैट मीन्स लेस देन जीरो तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि रूट के अंदर अगर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वैल्यू अगर निगेटिव आ जाए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, दैट मीन्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू लेस देन जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, क्या होगा, तो लेस देन जीरो नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन जीरो होगा, तो दैट मीन्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होगा, है कि नहीं। अब बोलो सर रूट के अंदर जीरो नहीं आ सकता है क्या, ऑब्वियसली आ सकता है, डिनोमिनेटर में तो नहीं है ना, ये तो न्यूमरेटर में है, रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में तो नहीं है ना, तो न्यूमरेटर में है, तो न्यूमरेटर में तो जीरो आ सकता है, नो प्रॉब्लम। दैट मींस ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर का जगह में आप लोग अगर जीरो पुट करें, रूट जीरो, आंसर इज जीरो, जीरो इज रियल नंबर, ओके। सो दैट मींस यहां पर 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो चूज कर सकते हैं, है कि नहीं। सो यहां पर अगर मैं फॉर्मूला थोड़ा यूज करूं, एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो, ए माइनस बी ए प्लस बी, है कि नहीं, दैट मींस 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इस टाइप का जब क्वेश्चंस आए, यहां पर फैक्टर्स आ गया, यहां पर देखो फैक्टर्स आ गया, ग्रेटर देन जीरो आ गया। अब ग्रेटर देन जीरो, ये तो ग्रेटर देन जीरो कहां पर जाके खत्म होगा, ग्रेटर देन जीरो तो करोड़ों इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, तो ऐसे भी तो हम लोग नहीं लिख सकते ना यहाँ पर कि जैसे डोमेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब जो है देखो यहाँ पर कैसे करते हैं, x प्लस 2 से x का वैल्यूज क्या है, अगर x प्लस 2 जीरो हो तो x का वैल्यूज क्या है, -2, x सॉरी यहाँ पर 2 माइनस एक्स अगर जीरो हो, x का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, तो दैट मीन्स x का वैल्यू -2, x का वैल्यू 2, 2 निकल रहा है कि नहीं। तो आप लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां पर -2 रखेंगे, इधर +2 रखेंगे, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यूज क्या क्या मिला, एक है -2, दूसरा है +2, तो नंबर लाइन में हम लोगों ने -2 और +2 लिख लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, -2 से छोटा वैल्यू चूज करेंगे, -2 से छोटा वैल्यू चूज करेंगे, चूज करो कोई भी, -2 से छोटा, -3 इसमें बिठाओ, 2 -3 दैट इज -1, 2 माइनस ऑफ -3 दैट मीन्स 5,
5 इंटू क्या होगा -1 -5। आंसर क्या आ रहा है -5। ये कि 0 से ग्रेटर है क्या, सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। -5 0 से ग्रेटर कैसे हो सकता है ये, दैट मीन्स ये जो x का वैल्यूज है -2 से छोटा हम लोग चूज नहीं कर सकते हैं, उसको ऐसे क्रॉस दे दोगे, ठीक है। फिर -2 से ग्रेटर आओ, -1 2 -1 1 2 -+1 3 इंटू 1 3 ग्रेटर देन 0 तो आ रहा है, दैट मीन्स -2 से ग्रेटर हम लोग चूज कर सकते हैं, है कि नहीं, ठीक है। अब आओ, ये तो गया। अब +2 से छोटा और +2 से ग्रेटर वैल्यू चूज करेंगे। अब +2 से छोटा और -2 से ग्रेटर, ये तो स्पेस एक ही आ रहा है ना, ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने राइट दे दिया है, ये इसमें सेटिस्फाई होगा तो इसमें भी होगा सेटिस्फाई, क्योंकि एक ही जगह है ना। -2 से ग्रेटर जाओगे और -2 से छोटा आओगे, जो बीच का जो जगह होगा वो तो एक ही जगह है ना, कॉमन पार्ट है ना ये। -2 से ग्रेटर 2 से छोटा, देखो कॉमन पार्ट आ रहा है ना ये। तो अगर इस पार्ट में ये दैट मींस ये सेटिस्फाई कर रहा है, ग्रेटर इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसमें भी तो होगा। तो अगर अब 2 से ग्रेटर चूज करो, 2 से ग्रेटर दैट मींस 3 2 + 3 5 2 - 3 -1 5 इंटू -1 -5। इसका आंसर -5 आ रहा है, बट ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, आ रहा है यहाँ पर लेस देन 0। दैट मीन्स यहाँ पर x का वैल्यू कहां से कहां तक हम लोग चूज कर सकते हैं, इस पार्ट में चूज कर सकते हैं, इस पार्ट में हम लोग चूज कर सकते हैं। तो लिखो हियर x का वैल्यू -2 से ग्रेटर हम लोग चूज कर सकते हैं, देखो ग्रेटर चूज कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर इक्वल साइन देंगे क्या, देखो हर जगह तो यहाँ पर ग्रेटर इक्वल्स टू देखे हम लोगों ने डील किया, तो यहाँ पर भी ग्रेटर इक्वल्स टू दो, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। और ये और फिर x का वैल्यू +2 से छोटा, +2 से छोटा ऐसे लिखते हैं, देखो तो है कि नहीं। अब दोनों को कंबाइन करें तो देखो तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, -2 लेस इक्वल्स टू x लेस इक्वल्स टू +2। सो दैट इज x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, बोलो तो क्लोज इंटरवल दोगे, क्योंकि इक्वल साइन है, लेस इक्वल्स टू साइन है, -2, बस ये होता है डोमेन। सो डोमेन क्या होता है, -2, क्लोज इंटरवल 2। देखो है कि नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको यहां पर जाना पड़ेगा। यहां पर दिखाई दे रहा है कि f(x = √4 - x² है, रूट के अंदर निगेटिव तो नहीं आ सकता है, तो लेस देन 0 वैल्यूज हम लोग चूज नहीं कर सकते हैं। किसका, 4 - x² का वैल्यू लेस देन 0 हम लोग चूज नहीं करेंगे, इसलिए ये साइन दे दिया। 0 से ग्रेटर चूज करेंगे, तो 0 से ग्रेटर चूज करेंगे, 0 चूज कर सकते हैं क्या, ऑब्वियसली कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यूमरेटर पार्ट है, डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है, तो न्यूमरेटर पार्ट तो 0 हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो इसलिए 4 - x² जो है 0 भी चूज कर सकते हैं, 0 से ग्रेटर भी चूज कर सकते हैं, इसलिए ग्रेटर इक्वल्स टू 0 दिया गया। ग्रेटर इक्वल्स टू मतलब क्या, ग्रेटर देन और इक्वल, तो ग्रेटर वैल्यू भी चूज कर सकते हैं और इक्वल वैल्यू भी चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसको a + b या -b फॉर्म में सजाए, 2 + x 2 - x। फिर उसके बाद इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का तरीका आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, ये यूजफुल तरीका है। फिर x का वैल्यू यहाँ से 2 फैक्टर निकल रहा है, तो 2 फैक्टर मतलब x का वैल्यू क्या मिल रहा है यहाँ पर, x + 2, इसके लिए x का वैल्यू -2 और 2 - x, इसके लिए x का वैल्यू +2। दैट मींस x का 2 वैल्यूज निकल रहा है, -2 +2। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, एक साइड में -2 रखोगे, एक साइड में +2 रखोगे, -2 +2। फिर उसके बाद शुरू करोगे, -2 से छोटा वैल्यू चूज करना है, करके बिठाओगे यहाँ पर। बिठाने के बाद देखोगे ये जो ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है, ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो क्रॉस दे दोगे। फिर उसके बाद -2 से ग्रेटर जाओगे, -2 से ग्रेटर चूज करने से देखोगे ग्रेटर इक्वल्स टू 0 आ रहा है कि नहीं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा ग्रेटर देन 0 आ रहा है। सो -2 से ग्रेटर वैल्यू हम लोग चूज कर सकते हैं, इसलिए राइट दे दो। अब -2 से ग्रेटर जो बात है, +2 से छोटा तो एक ही बात है ना, एक ही जगह है कि नहीं, है कि नहीं। दैट मींस मैं यहां पर खड़ा हूं, सपोज मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरा जो इस साइड है, ये साइड लेफ्ट साइड, और ये जो ये कॉर्नर है, उस कॉर्नर का राइट साइड,
एक ही स्पेस होता है। मैं यहाँ पर खड़ा हूं, सपोज मेरा लेफ्ट साइड और इसका राइट साइड, तो स्पेस कौन सा बना, ये वाला स्पेस है ना, कॉमन स्पेस है कि नहीं। तो दैट मींस यहाँ पर -2 से ग्रेटर, +2 से छोटा, स्पेस तो एक ही है, एक ही नंबर से यहाँ पर चूज कर रहे हैं हम लोग। तो -2 से ग्रेटर अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो ऑब्वियसली +2 से छोटा भी सेटिस्फाई करेगा, चेक करने का यहाँ पर जरूरत नहीं होता है। अब +2 से ग्रेटर चूज करके भी देखा है हम लोगों ने, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो बस हो गया। तो दैट मींस x का वैल्यू -2 और +2 के बीच से चूज करना है, -2 और +2 के बीच से चूज कर सकते हैं, वही लिखा है हम लोगों ने, देखो। और यहां पर देखो हर जगह ग्रेटर इक्वल्स टू ग्रेटर इक्वल्स टू ग्रेटर इक्वल्स टू 0 दिया गया है, तो वहां पर भी हम लोगों ने इक्वल साइन तो देना पड़ेगा, क्योंकि 0 भी हो सकता है। x का वैल्यू -2 अगर पुट करें, x का वैल्यू -2 अगर पुट करें, क्या होता है, -2 पुट करो, ये 0 हो गया, तो 0 तो आ सकता है आंसर, ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है तो 0 तो आएगा आंसर, है कि नहीं, ग्रेटर इक्वल्स टू है ना, तो 0 भी तो आ सकता है, 0 से ग्रेटर या फिर 0 के साथ इक्वल, इसलिए हर जगह आपको इक्वल 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 साइन देना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने लिखा है, लिखने के बाद तो देखो ये फॉर्मेशन बन गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन है ना ये सब, है। तो ये ऐसे ही आपको डोमेन रेंज निकालना है। तो इस लेक्चर में सिर्फ हम लोग यहाँ तक ही स्टॉप करेंगे, थोड़ा हेवी वेटेड क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन जो है, बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों को एनसीईआरटी में मिलेगा, एक्सरसाइज में आप लोगों को करना है इस टाइप का क्वेश्चंस, ओके। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, फिर लेवल बढ़ा के डिफरेंट थोड़ा अपर लेवल का क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे, विच इज वेरी मच यूजफुल फॉर द बोर्ड एग्जाम। डोमेन रेंज का क्वेश्चन तो एक तो आएगा ही, श्योर, एक तो आएगा ही, 4 मार्क्स का एक आएगा ही कंफर्म, ओके। और कॉमन भी मिल जाएगा, मैं कॉमन डाल दूंगा, ओके, कॉमन भी मिल जाएगा। तो इस लेक्चर में सिर्फ हम लोग यहाँ तक ही स्टॉप करेंगे। आप लोगों को अगर लेक्चर्स जो है पसंद आ रहा है, हाँ, और कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग दिस डोमेन रेंज, जस्ट यू कैन कमेंट मी, ओके, जस्ट इन द कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं आप। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों का डाउट जो है, अगर डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, है कि नहीं। तो डाउट है तो ये हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें डिस्कस कर देंगे, ठीक है, कल ही करेंगे, है कि नहीं। तो आप लोग को अगर लेक्चर्स पसंद आ रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। लाइक, शेयर और ये कमेंट, ये तीनों चीज जो चैनल ग्रो होने के लिए बहुत जरूरी होता है कि नहीं। तो विदाउट दिस 3 थिंग्स ए चैनल कांट बी ग्रोन अप, ओके। सो ये कमेंट, लाइक और शेयर ये जरूर करना फ्रेंड्स लोगों के साथ, ठीक है। सो आप लोगों को जस्ट ईद आ रहा है, जो मेरे मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को ईद मुबारक इन एडवांस, ओके। सो एंजॉय कीजिए ईद। तो आप एंजॉय क्या करें, अभी तो ये सिचुएशन ही ऐसा चल रहा है, ओके, क्या करें, अभी कुछ नहीं कर सकते, वी आर हेल्पलेस। तो आप लोगों को घर पे ही रहना है, अगर खुद को अगर फिट एंड फाइन रखना है तो घर पे ही रहना है, ओके। जस्ट स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, ओके। जस्ट टिल देन, बाय।